ایمانی غیرت اتنا مفقود ہو چکا ہے کہ آپ کو مسجد کی طرف چل پڑ کر آنے کے لیے اس ایمان نے مجبور نہیں کیا کہ چلو مسجد کی طرف چل کر. تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم صرف اور صرف جمعہ کے دن آتے ہو, جمعہ کے دن آنے کے بعد وہ بھی تم کچھ چند منٹ یا چند گھڑی رہ کر نمازیں پڑھتے ہو چلے جاتے ہو, اپنے ایمان کی خیر مناؤ. راتوں کو اٹھنے والے, راتوں کو جاگنے والے, راتوں کو گریہ وزاری کرنے والے, اللہ کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہانے والے, اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے والے, اپنی حاجات مانگنے والے, اللہ سے معافی طلب کرنے والے, رزق مانگنے والے, جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھتے ہیں, اللہ ان کے ہر حرکت کو دیکھ کر مسکراتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. ما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤك شح نفسه فأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں قابل مبارکباد ہیں، اور
اللہ کی رحمتوں میں ہے، اور یہاں پر جمع ہو کر ہم نے اپنے دینی بیداری کا بھی ثبوت دیا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی اہل ایمان کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کے اندر دین سیکھنے، نبی کے فرامین کو سننے کا جذبہ ابھی باقی ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی جس کا اصل مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے۔ لیکن آج یہ انسان دھیرے دھیرے راہ ہدایت سے بھٹکتے ہوئے ضلالت کی کھائی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ سب کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کیسے خوش ہوگا یہ ہمیں فکر ہے۔ گھر میں ہمارے بھائی ہیں، وہ کیسے خوش ہوں گے یہ ہمیں فکر ہے۔ ہمارے ماں باپ کیسے خوش ہوں گے یہ ہمیں فکر لاحق ہے۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے ہم سے کیسے خوش ہوں گے یہ ہمیں فکر لاحق ہے۔ کیسے ہمارے لیے وہ ہنسیں گے، کیسے وہ ہمارے باتوں پر مسکرائیں گے، ہم وقت اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں گھر کے اندر جب آتے ہیں بھائی سے، بہن سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، باہر دوستوں سے، پاس پڑوس والوں سے مذاق کے انداز میں یا کچھ ایسی بات کہہ کے ہم ان کی مسکراہٹیں لوٹ لیتے ہیں۔ بڑی فکر لاحق ہے ہمیں، لیکن نئی فکر ہے تو ہمارا رب مسکرائے۔ ہم عمل ایسا کر لیں کہ اللہ مسکرا دے، اللہ ہنس دے۔ ہمیں دنیا والوں کو ہنسانے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا بھائی وہ ہنس دیا، بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ وہ ہنس رہا ہے میری بات پر، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میری بیوی میری بات پر ہنس رہی، بہت اچھا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر بات کروں گا وہ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر اللہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ آج اللہ کو ہم نہیں ہنسا پاتے، اللہ رب العزت بھی ہنستا ہے۔ اب اللہ کا ہنسنا کیسا ہے؟ جیسے ہم ہنستے ہیں اس طریقے سے اللہ کا ہنسنا ہے، جیسے اور لوگ ہنستے ہیں اس طریقے سے ہنسنا ہے۔ بچوں کی طرح ہنسنا ہے، بوڑھوں کی طرح ہنسنا ہے، جوان کی طرح ہنسنا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کی طرح، کس طریقے سے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت کی شائع نشان کوئی چیز نہیں، اللہ کی ذات بالکل مبرہ ہے ہر چیز سے۔ اللہ نے کہا میں ہنستا ہوں۔ ہمیں بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ رب العزت مسکراتا ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے، اور اس رب کو ہنسانے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے پڑیں۔ اور اگر اس رب کو ہم ہنسا لیں گے، اگر وہ رب ہماری بات پر مسکرا دیا تو یاد رکھیے گا کہ دنیا بھی ہماری بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ لیکن اس رب کو ہنسانے کی ہمیں فرصت نہیں۔ دنیا کے تمام کام کر لے، دنیا کی تمام چیزوں میں ہم خوشی حاصل کر لے، دنیا کی تمام مسکراہٹیں حاصل کر لے، دنیا کی تمام قہقہے حاصل کر لے، لیکن رب کے قہقہے ہم نہیں حاصل کر پائیں، رب کی مسکراہٹیں ابھی ہم نہیں لے پائیں، رب کی ہنسی ابھی ہمیں نہیں ملی ہے۔ آئیے وہ اعمال سنتے ہیں۔ اچھا،
یہ بھی سن لیجئے، رب کے ہنسنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر اللہ ہنس دے ہمارے اعمال پر، ہم دنیا کے اندر جو کرتے ہیں، اللہ رب العزت اگر اس عمل پر ہنس دے تو بڑی فضیلت. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، 22,476 نمبر کی حدیث ہے. حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا، اللہ رب العزت اگر بندے کے کسی عمل کی وجہ سے دنیا میں اگر وہ عمل کر رہا ہے، اللہ مسکرا دے، اللہ ہنس دے، فلا حساب لہ، تو پھر اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا. یہ فضیلت ہے. کس بات کی؟ اللہ کسی عمل کی وجہ سے مسکرا دے، اللہ کسی عمل کی وجہ سے ہنس دے، تو اللہ کے نبی نے کہا فلا حساب لہ، پھر اس کے بعد کوئی حساب نہیں ہے اس کے اوپر. اب کوشش کیجیے، یہ اللہ رب العزت کا ہنسنا گویا ہمارے لیے ایک نعمت عظمی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آئیے وہ اعمال سنتے ہیں جس سے اللہ مسکراتا ہے. نمبر 1، عقیدے توحید پر قائم ہو جانا، عقیدے توحید کو پوری طریقے سے اپنا لینا، ہر معاملے میں عقیدے کو اپنے ساتھ رکھے. کبھی بھی عقیدے توحید سے ہم سودا نہ کریں تو اللہ رب العزت قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے اس عمل کی وجہ سے مسکرائے گا. اللہ رب العزت ہماری عقیدے توحید میں پختگی کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے لے کر آئے گا. لیکن آج عقیدے توحید پر ہم قائم ہیں؟ آج کیا توحید ہمارا پختہ ہے؟ آج ہر ایک معاملے میں دیکھ لیجئے، ہر ایک جگہ پر ہم توحید سے سودا کرتے ہیں. جہاں ڈر ہو، جہاں بھے پیدا ہو، جہاں ہمیں نقصان کا خطرہ ہو، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس رب کے سامنے نہ جھک کر ہم دوسروں سے ڈر جاتے ہیں، دوسروں سے ہم دہشت محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ڈر کی حالت یہ ہوتی ہے پھر ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں. اس رب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں تک ہمارا ہر لمحے ہر سیکنڈ اللہ رب العزت نے خیال رکھا. پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد مسلسل 2 سالوں تک ہمارے ماں کے سینے میں ہمارے لیے رزق کو پیدا کرتا رہا، اس کو محفوظ رکھتا رہا. پھر اس کے بعد دنیا کی تمام نیکی، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی، لیکن اس رب کا در ہم چھوڑتے ہیں، اور یہ در چھوڑنا ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. کہاں چھوٹتا ہے؟ گھر کے اندر اگر ہمارے کوئی سامان گر جائے تو اس کے بعد ہم دوسرے دن کوشش کرتے ہیں کسی کو بلا کر دکھوا لے کہ ہمارے گھر میں کچھ ہوا تو نہیں ہے. ہم مشین چلا رہے ہو، اچانک کچھ مشین میں ہو جائے، ہمارے دماغ میں پہلے یہ آتا ہے لگ رہا کسی نے کچھ کر دیا. یہیں پر توحید سے سودا کرتے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جب اللہ چاہے گا کسی چیز کو دینے کے لیے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اس چیز کو روک نہیں سکتی ہے. اگر اللہ رب العزت کسی چیز کو روک لے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اس چیز کو ہم تک نہیں پہنچا سکتی. ہمارے بچے رونے لگے، رات کو اگر ڈر جائے، اگر وہ نیند کی حالت میں گھبرا کر اڑ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں تکیا کے نیچے لوہا رکھ کر سونے شروع کر دیتے. یہیں پر ہم توحید کا دامن چھوڑ دیتے. گھروں کے دیواروں پر ہم تختیاں لٹکوا دیتے ہیں، یہیں پر ہم توحید سے سودا کرتے ہیں. ہم گھر کے چوکھٹ پر ہم گھوڑے کے نال لگوا دیتے ہیں، یہیں پر ہم توحید کا دامن ہم سے چھوٹ جاتا ہے، رب سے رشتہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. عقیدہ توحید پر اگر قائم ہیں، اگر عقیدہ توحید ہمارے اندر ہے اور اس پر پختگی کے ساتھ ہم مرتے دب تک اسی پر رہیں تو قیامت کے دن اس کا کیا فائدہ ہوگا. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مسند احمد میں 19,654 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العزت ایک چٹیل میدان میں ہر قوم کے ہر افراد کو جمع کرے گا، یعنی ہر امتی وہاں موجود ہوں گے. عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف اور جتنے بھی نبی ہیں تمام کے امتی اس چٹیل میدان میں موجود ہوں گے. اللہ جب چاہے گا کہ میں ان بندوں کے سامنے آؤں، میں اپنے چہرے کا دیدار کراؤں، تو اللہ رب العزت پہلے ان لوگوں کا چہرہ ظاہر کرے گا جس کی لوگ عبادت کرتے، جس کے ڈر سے لوگ ڈرتے تھے، جس کے ناراضگی سے لوگ ڈرتے تھے
कि कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। जहां पर हम जाकर झुकते थे, जहां पर हम पीठ दिखाना गवारा नहीं करते थे, जहां पर जाकर हम उनको खुशी गमी और इसी तरीके से हर चीज का मालिक समझ लेते थे, जिनको गौस और दस्तगीर हमने समझ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहेगा कि मैं उनके सामने आऊं, यानी मैं लोगों के सामने अपने चेहरे को जाहिर करूं, अल्लाह उनके चेहरे को जाहिर कर देगा। लोग जिसकी इबादत करते थे उनको देखेंगे फौरन पहचान लेंगे, अब उनके पीछे पीछे वो चलने लगेंगे, यहाँ तक कि जो जिसकी इबादत कर रहा है वो उसके पीछे पीछे जाता रहेगा, यहाँ तक कि जिसकी इबादत की जाती थी वो उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देगा, जहन्नम के गड्ढे में गिर गए। लेकिन अभी एक जमात बाकी है, वो लोग अभी इंतजार में रुके हुए, किसी के साथ नहीं गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मा यातीना रब्बुना अज़्ज़ा व जल व नहनु अला मकानिन रफ़ीइन, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर आएगा और हमारी अल्लाह के नबी ने कहा मेरी हालत ये होगी कि मैं एक बुलंद मकाम पर हूँगा। फयकूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा मन अंतुम, तुम लोग कौन हैं? तुम लोग यहाँ पर रुके हुए क्यों हो? मैंने कुछ लोगों के माबूद के चेहरे सामने कर दिए थे, वो लोग उनके पीछे हो लिए, तुम लोग किसके इंतजार में हो? फनक़ूलु नहनु मुस्लिमून, अल्लाह के नबी ने कहा कि कहा जाएगा कि हम लोग इस्लाम वाले हैं, हम लोग मोमिन हैं, हम लोग मुस्लिम हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा फयक़ूलु मा तंतज़िरूना, तुम्हें किस बात का इंतजार है? अल्लाह पूछेगा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फयक़ूलूना नंतज़िरु, वो लोग कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम इंतजार कर रहे हैं रब्बना अज़्ज़ा व जल, अपने रब का इंतजार कर रहे हैं, जो हमारा हर चीज का मालिक था, जो हमें रिज़्क़ देता था, हमारे खुशी गमी का जो मालिक था, उस रब के इंतजार में हम हैं। आला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयक़ूलु वहल तारिफूनहु, अल्लाह कहेगा कि तुम उसे पहचानोगे कैसे? जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस जात के इंतजार में तुम रुके हुए हो, पहचानोगे कैसे? तुमने तो देखा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहा जाएगा कि मेरा रब जब सामने आएगा उसकी तरफ पूरी दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं होगी, हम लोग उसे पहचान लेंगे, इतना सुनना रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने ले आएगा, अब लोग उसको देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख पाएंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह का सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा जिस रब का तुम इंतजार कर रहे थे वो रब तुम्हारे सामने आ चुका है, और ये दीदार नसीब कैसे हुआ? ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह को हम देखेंगे क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत का देखेंगे क्यों? क्योंकि हमने तौहीद का पास रखा, हम तो दुनिया के अंदर तौहीद पर कायम थे। यही वजह है कि हम मैदान महशर में भी अपने रब का इंतजार करेंगे कि जब रब्बे बारी ताला आएगा तब हम उसके साथ चल पड़ेंगे। ये है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा लोगों खुश हो जाओ, उम्मत मोहम्मदिया के लोग होंगे और भी अहले ईमान, दीगर उम्मतियों के भी अहले ईमान होंगे। अल्लाह कहेगा खुश हो जाओ, तुम्हारे बदले अल्लाह अब मैंने जहन्नम के अंदर यहूद और नसारा को डाल दिया, अब तुम लोग जन्नत। पता क्या लगा? तौहीद पर कायम रहने का एक फायदा ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुस्कुराता हुआ चेहरा मैदान महशर में देखेंगे, और उसके बाद दूसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान और अहले तौहीद के बदले में यहूद और नसारा को जहन्नम में डाल देगा, जिनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी पक्का ईमान और इत्तेकाद होगा सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बदले यहूद और नसारा को जहन्नम में डाल देगा। ये पहली वजह, ये पहला अमल है जिसकी वजह से अल्लाह मुस्कुराता है। नंबर दो, रात की तारीकी हो, पूरी दुनिया ख्वाब गफलत में सो रही है। रात की तारीकी में ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। रात की तारीकी में बिल्कुल अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई इंसान चलने वाला नहीं है, कोई इंसान इधर उधर नहीं है। रात की ठिठुरती ठंडी में कोई इंसान इधर उधर नहीं जा रहा है, हर शख्स अपने गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ है और ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। ऐसे आलम में एक आदमी उठता है, ठंडी बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है, बरसात हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी उठ रहा है। वो उठता है, नल को खोलता है, टोटी को हाथ लगाता है, खोलने के बाद वुजू करता है, वुजू करने के बाद मसल्ले को बिछाकर उस पर खड़ा हो। अल्लाह ऐसे शख्स को अर्शे मुअल्ला पर बैठकर देखकर मुस्कुराता है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को देखकर अर्श मुअल्ला पर बैठकर मुस्कुराता है। अब सोचिए ये नफिल नमाजें, रात की तहज्जुद की नमाजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। और आज हमारी हालत क्या है? हम तो तहज्जुद तो दूर की बात है, फराइज हम नहीं अदा कर पाते हैं। हम जुमा वाले सिर्फ मुसलमान हैं। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने मस्जिदों के अंदर आए, अपने मस्जिदों की निगरानी करें, अपने मस्जिदों को देखें। आज देख लीजिए, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमारे मोहल्ले के अंदर एक दीनी जलसा रखा गया, एक दीनी प्रोग्राम रखा गया। मैं इस मोहल्ले के तमाम अफराद से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर ईमानी गैरत इतना मफकूद हो चुका है कि आपको मस्जिद की तरफ चल कर आने के लिए इस ईमान ने मजबूर नहीं किया कि चलो मस्जिद की तरफ चलकर? तुम्हारा कैसा ईमान है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन आते हो, जुमा के दिन आने के बाद वो भी तुम कुछ चंद मिनट या चंद घड़ी रहकर नमाजें पढ़ते हो, चले जाते हो, अपने ईमान की खैर मनाओ। रातों को उठने वाले, रातों को जागने वाले, रातों को गिरिया वजारी करने वाले, अल्लाह के सामने शर्मिंदगी के आंसू बहाने वाले, अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने वाले, अपनी हाजात मांगने वाले, अल्लाह से माफी तलब करने वाले, रिज़्क़ मांगने वाले, जब ये खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं, अल्लाह इनके हर हरकत को देखकर मुस्कुराता है। हदीस सुनते हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस के रावी हैं, सही तरगीब और तरहीब में हदीस नंबर 629 नंबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाहु व यदहकु इलैहिम व यस्तबशिरुहुम व यस्तबशिरु बिहिम। कि तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको अल्लाह देखकर मुस्कुराता है, हंसता है, और उनके लिए बशारत भी है। कौन? अल्लाह के नबी ने कहा तीन आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको देखकर मुस्कुराता है, और जिनके लिए बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें एक आदमी वो है, वल्लज़ी लहू इमरातुन हसनतुन व फिराशुन लय्यिनुन हसनुन फयक़ूमु मिनल लैल। एक आदमी वो है जिसके पास नरम गरम बिस्तर है, जिसके पास बेहतरीन बिस्तर है, जिसके बगल में खूबसूरत औरत है, लेकिन उसके बावजूद उसका मामला क्या है कि वो रात की तारीकी में बिस्तर को छोड़ रहा है, बीवी को छोड़ रहा है, गर्मी है, ठंडी है, तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, और रात की तारीकी में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इबादत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श से देखकर ऐसे बंदे को मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। दुनिया के अंदर ये अमल अगर हम रात में कर रहे हैं, अल्लाह मुस्कुरा दे। नबी को हदीस याद रखिएगा, फला हिसाब लहू, उसका फिर कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी अल्लाह खुश हो गया, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। दुनिया के अंदर उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से अल्लाह ने हंस दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे की इस हरकत को देखता है, फिर फरिश्तों को मुखातब होकर कहता है कि जरा ये बताओ, ये बंदा गर्म बिस्तर पर सोया हुआ था, मैंने अपने नेमत से इसको गर्म बिस्तर दिए हैं, मैंने बेहतरीन बिस्तर दिए हुए हैं, मैंने इस पर तमाम नेमतें तमाम कर दी है, इसके लिए खूबसूरत बीवी भी है, बगल में वो सोई हुई है, लेकिन किस बात ने मजबूर किया? ये रात की ठुठुरती सर्दी है, ये गर्मी का जमाना है, ये रात में बरसात का मौसम है, ये बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन उसके बावजूद किस बात ने इसको मजबूर किया है कि ये खड़ा हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिरिया वजारी कर रहा है, अल्लाह के सामने नादिम हो रहा है, अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तेरी अजाब से डरता है, अल्लाह ये तेरी जहन्नम के दहाड़ से डरता है, अल्लाह ये तेरे जहन्नम के चीखों पुकार से डरता है, अल्लाह ये तेरे अजाब से डरा हुआ है, अल्लाह तेरी आग से डरा हुआ है, अल्लाह ये बड़ा लालची है, ये जन्नत चाहता है, जन्नत के महलात चाहता है, जन्नत की नेमतें चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब इसका ये मामला है, अगर इस बात से डर रहा है कि मेरा अजाब इसको पकड़ न ले, इस बात से डर रहा है कि मैं कहीं जहन्नम में दाखिल न कर दूं, इस बात से डर रहा है कि कहीं इसके ऊपर मेरी आग न बरसाई जाए, यानी मेरे आग से जलाया ना जाए, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैं इसे अमान देता हूं। अल्लाह मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसे अमान देता हूं, मैं इसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा, मैं इसे जन्नत की नेमतें दूंगा। ये आमाल हैं जिनसे अल्लाह मुस्कुराएगा और जन्नत भी मिल जाएगी। मेरे भाइयों कर लीजिए, आज हो पाता नहीं हो पा रहा है, जरा और आगे बढ़िए। एक बंदा जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, कुर्बानी का जज्बा ईसार हो उसके अंदर,
किसी की कोई जरूरत हो उसे पूरा करेगा, गर्चे उसे उस चीज की बड़ी जरूरत है। यानी मुझे 10 रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं अभी गुजर रहा हूँ वो 10 रुपए लेकर, लेकिन अभी कोई सामने से आया बड़ा जरूरतमंद, मेरे पड़ोस का है, मेरे मोहल्ले का है, मेरे जानने वाला या कहीं दूर का है, वो आदमी कह रहा है मुझे इस बात की जरूरत है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इस 10 रुपए से मैं अपने घर की जरूरत पूरी कर सकता हूँ, अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो देख रहा है कि एक आदमी मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, वो पैसा उसे उठा कर दे दे। ये जज्बा अगर किसी के अंदर हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को देख कर मुस्कुराता है। ये जज्बा आज हमारे अंदर है। आज कुर्बानी का मौका करीब आ रहा है, ये भी एक कुर्बानी, एक जज्बा है, ये एक इशार है, एक इबादत है, लेकिन हम पहले ही से सोच ले रहे साहब है ही नहीं कुछ, साड़ी के मार्केट एकदम खराब है, कहाँ से कुर्बानी होगी? नहीं, आप आखिरी दम तक कहते रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल रही, अल्लाह की रहमत रही तो मैं कुर्बानी करूंगा। जज्बा रखिए अपने अंदर इस चीज को मरने मत दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। और हम लोग ये भी मैंने उन लोगों को भी देखा है, बहुत सारे लोगों को, नहीं मैं ये पैसा इसलिए रखा हुआ मेरा फला काम हो जाए मैं कुर्बानी नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाइयों, जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए, इशार कुर्बानी पैदा कीजिए। आप उस पैसे को, ठीक है आपने उस चीज को रखा है, लेकिन अभी इबादत का वक्त करीब आ रहा है, आप एक बहुत तगड़ा बकरा मत लेकर आइए, एक मामूली सा ऐसा लेकर आइए जो हदीस में जो शरायत है उस तरीके का एक छोटा सा बकरा लाकर उसकी कुर्बानी कर दीजिए। अल्लाह इस अदा से मुस्कुरा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पैसे के अंदर इंशाअल्लाह जरूर बरकत देगा। आइए एक वाकया देखते हैं, अल्लाह किस कदर हंसता है अगर किसी के अंदर ये जज्बा हो कि नहीं मेरा काम बने ना बने लेकिन फला आदमी का काम बनना चाहिए। आज इसका उल्टा हमारे यहाँ मामला चलता है, हमारा काम नहीं बना तो उसका भी नहीं बनना चाहिए, मेरा बिगड़ा है तो उसका भी बिगड़ना चाहिए। ये जज्बा हमारे अंदर है, लेकिन ये जज्बा एक सहाबी के अंदर बिल्कुल बरअक्स था। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन अल्लाह के नबी का मेहमान भूखा न रहने पाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बुखारी में 3798 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए, रात का वक्त है, रात के खाने का इंतजाम करना है। अल्लाह के नबी ने घर के अंदर अज़वाज मुताहिरात के पास एक सहाबी रसूल को भेजा, कहा जाओ पता करो घर के अंदर खाने की क्या चीजें हैं, घर के अंदर एक मेहमान के लिए क्या इंतजाम है। गए पता किए, पता हुआ कि कुछ घर के अंदर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर इतने खाने मौजूद नहीं है कि आज रात का भी इंतजाम हो सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि मामला ऐसा है कि घर के अंदर खाने का इंतजाम नहीं है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कौन है जो इस मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। एक अंसारी साहबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ घर के अंदर कह कर आओ, घर के अंदर देख कर आओ कि इंतजाम क्या है। वो सहाबी रसूल जा रहे हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं घर के अंदर इंतजाम क्या है, खाने की चीजें क्या है। नबी का एक मेहमान आया हुआ है, उसके लिए अल्लाह के नबी से मैंने वादा कर लिया है कि नबी मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा। बीवी कहती है कि मेरे सरताज घर के अंदर इतना खाना है कि बच्चे खा सकते, हम नहीं खा सकते हैं। शौहर ने जब ये सुना कि सिर्फ बच्चों के मिकदार के बराबर खाना है और उसके बाद कोई और खाना नहीं है, उस अंसारी साहबी ने कहा कि मेरी प्यारी बीवी बच्चे जब खाना मांगे उन्हें लोरियां गाकर उन्हें किसी तरीके से बहला फुसला कर सुला देना और वो खाना गर्म करके तुम दस्तरखान पे रखो। और याद रखना जब मैं मेहमान को लेकर आ जाऊं चिराग जो घर में जलता रहेगा उसको ठीक करने के बहाने उसे बुझा देना। वही मामला हुआ, नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर खाना तैयार है, घर के अंदर मैं मेहमान नवाजी के लिए तमाम तैयारियां करके आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ले जाओ मेरे मेहमान को। इधर मेहमान लेकर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अदा को देख रहा है। मेहमान घर के अंदर गए, जो बीवी को कहा गया था मेहमान दस्तरखान पर बैठा है। अब यह है कि खाना शुरू ही होने वाला है, चिराग सही करने के बहाने बुझा दिया गया। अब वो सहाबी रसूल वो मेहमान रसूल दोनों बैठे हुए हैं और सहाबी रसूल ऐसी हरकत कर रही हैं, गोया गुमान हो रहा है कि वो उस बर्तन से कुछ न कुछ खाना ले रहे हैं। मेहमान खाना खा रहा है,
यहाँ तक कि मेहमान पेट भर कर खाना खाया। रब इस चीज को देख रहा था और रब मुस्कुरा भी रहा था। अब जिब्राइल को भी कह रहा था, जिब्राइल देखो ये मेरा रब है जो मेहमान रसूल की मेहमान नवाजी में लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के पास और पूरी कहानी बताओ कि आज ऐसा ऐसा मामला हुआ, बड़ा अजीब मंजर था। रब ने इस अदा को देखकर रब इस अदा को देखकर मुस्कुराने लगा, रब इस अदा को देखकर हंसने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी रसूल के वो आए, इससे पहले हजरत जिब्राइल पहुंचे हुए हैं और उसके बाद पूरा माजरा सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत नाजिल हुई सूरह हश्र की, वो आयत नंबर 9, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में वो सहाबी रसूल जब आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज तुमने घर के अंदर क्या माजरा किया है? वो सहाबी रसूल डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलती हो गई, नबी को मालूम तो नहीं हो गया। कहा, अल्लाह के नबी क्या हो गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने एक ऐसा काम किया है कि अल्लाह ने भी बड़ा ताज्जुब किया, अल्लाह भी मुस्कुरा रहा था। और इसी तरीके से अल्लाह ने जिब्राइल को भी कहा, देखो ये मेरा बंदा है, मैं इसकी इस अदा से खुश हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए तुम्हारी इस अदा पर एक आयत नाजिल की है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि कोई अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उन्हें कुछ चीजों की जरूरत होती है लेकिन वो अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं। भूखे वो खुद थे, उनको खाने की जरूरत थी, उनके बच्चों को भी खाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? उसको मेहमान को खिलाया, खुद भूखे रह गए, बच्चे भी भूखे रह गए। शायर कहता है, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये अमल आज पैदा कीजिए। आज हमारे यहाँ मेहमान आए, उससे पहले हमें ये हो जाता है कि मेहमान आने वाले हैं, घर के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम चीजें हमारे दिल में पैदा हो जाती है। हमें सोचना चाहिए कि रब की तरफ से अगर कोई मेहमान आ रहा है तो रब की तरफ से रहमतें भी आने वाली, रब की तरफ से रहमतें भी आने वाली है। हमारी बहनें आए, हमारी बेटियां आए, हमारे रिश्तेदार आए, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन आज मामला इसके बिल्कुल फर्क से होता जा रहा है। हमारे अंदर ईसार का जज्बा नहीं, कुर्बानी का जज्बा नहीं है, हमें दूसरों के ऊपर कुछ खर्च करने का जज्बा नहीं है। इसको पैदा कर लीजिए, अल्लाह मुस्कुरा। इसी तरीके से नंबर 4, सदका करने वालों के हरकत को भी देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। सदका, आदमी मस्जिद के अंदर आया, अभी मस्जिद के अंदर जुमा के दिन ऐलान हो गया कि भाई मस्जिद के अंदर ये रंग पेंट का काम होना है, वजूखाना का काम होना है, या फिर ऊपर बनने का काम हो रहा है। आपने अपने जेब में हाथ डाला और निकाल कर रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अदा देख लिया, जेब के अंदर हाथ डालने के अदा को अल्लाह ने देखा। जब आपने रखा, उस अदा को भी अल्लाह ने देखा। अल्लाह मुस्कुरा देता, अल्लाह इस चीज पर मुस्कुरा देता है। ये काम तो बड़ा आसान मालूम हुआ। तौहीद में हम खोटे हैं, रात की नमाज में भी हम खोटे हैं, इशार और जज्बा में भी खोटे हैं, लेकिन सदका वाला ये काम तो बड़ा आसान मालूम हो रहा है। इस तरीके से हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। सदका याद रखिएगा, बुरी मौत से बचाती, बलाओं को टाल देती, दिल को नरम। एक हदीस सुनिए, मुस्नद अल फिरदौस जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 41। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल लयज़हकु इला रजुली इज़ा मद्दा यदहु बिस्सदका। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी को देखकर हंसता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह उस आदमी को देखकर मुस्कुराता है, हंसता है, जो अपने हाथों को सदका के लिए फैलाता है, यानी जेब में डाले फिर उसके बाद निकाल कर हाथ को फैलाए। इदा मद्दा यदहु बिस्सदका, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब कोई आदमी अपने हाथ को सदके के लिए बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है? इस अदा को देखकर मुस्कुराता है। वमन दहिकल्लाहु इलैहि गफर लहू, और अल्लाह जिसको देखकर मुस्कुरा दे उसके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। मेरे भाइयों, सदका करिए, आप सदका करने का जज्बा पैदा कीजिए। आप सदका करिए, अल्लाह मुस्कुराएगा। लेकिन आज हमारे यहाँ सदका नहीं हो पाता है। हम ये समझते सदका वो करे जो बहुत अमीर हो, जिनको अल्लाह ने दे रखी है दौलत, जिनके यहाँ दौलत का अंबार हो। मेरे भाइयों, मैं एक आसान नुस्खा बताता हूँ,
अपने रब की हंसी लूटने का, अपने रब को हंसने का मौका देने का मैं एक आसान नुस्खा बताता हूँ। इस तरीके से आप अपने रब को, जब आप अपने हाथ को फैलाएंगे सदके के लिए, आपका रब जरूर मुस्कुरा देगा। और फिर याद रखिएगा कि जब आपका रब मुस्कुरा देगा तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करेगा। वो नुस्खा क्या है? आप लुम चलाते हैं, आपका हिसाब हफ्ते में हो रहा है, हफ्ते में हो रहा है, आपने 1000 का काम किया। आप जब जुमा के दिन वो 1000 रुपए पाए, मैं नहीं कह रहा हूं आप 100 रुपए उसमें से खर्चा कीजिएगा, आप धीरे से जेब से 10 रुपए निकालिए। अब 10 रुपए निकालने के बाद क्या है, उसे मस्जिद के किसी उसमें डाल दीजिए, यानी मस्जिद की जरूरत में डाल दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी बेवा को दे दीजिए, किसी यतीम को दे दीजिए। इस तरीके से आप करिए, ये बड़ा आसान नुस्खा है, आपका रब मुस्कुरा देगा, आपका रब मुस्कुरा। आप अगर बड़े सेठ साहब हैं तो आप ऐसा कीजिए, एक आसान नुस्खा ये है कि आपके यहाँ 10 मशीनें हैं और हर मशीन में हफ्ता पर 10 साड़ियां चल रही है, यानी क्या है 10 मशीनों की साड़ी पूरे हफ्ते की मिला के 100 साड़ियां होंगी। आप क्या करिए, हर साड़ी का 1 रुपए अलग कीजिए और ये नियत करिए कि मैं हर साड़ी से 1 रुपए निकालूंगा, यानी उस साड़ी की कीमत 1000 रुपए है। आप 999 रुपया अपने पास रखिएगा, हर साड़ी से 1 रुपए निकालिएगा, वो पूरे 100 रुपए हुए। उस 100 रुपए को आप किसी गरीब को दे दीजिए, किसी मस्जिद में दे दीजिएगा, किसी बेवा को दे दीजिएगा। इस तरीके से आप कर लीजिए। या इसी तरीके से आपको अल्लाह ने और बहुत नवाजा है, आप बड़े ही धन्ना सेठ हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप महीने महीने में मदरसों का चक्कर लगा लीजिए, वहां जाकर पूछिए कि कोई यतीम बच्चा है जिसके फीस का मामला हो रहा है, लाओ मैं ये फीस उसको जमा कर देता हूँ, ये अदा आप कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुरा देगा। है कि नहीं बड़ा आसान सदका? कीजिए इस चीज को। तारीख में आज एक आदमी का नाम बड़ा लिया जाता है, अलबैक नाम का एक रेस्टोरेंट, आपने सुना है अलबैक नाम? उसके जो सबसे पहले जो मालिक थे वो सऊदी अरब की कंपनी है, सबसे पहले जो मालिक थे उन्होंने क्या किया था। आज अलबैक का मामला ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ब्रांच है, पूरी दुनिया के अंदर। और उसके मालिक ने क्या किया था कि उन्होंने कहा, उन्होंने ये नियत की थी कि मैं इस चीज को शुरू कर रहा हूं और हर 10 रियाल पर मैं 1 रियाल सदका करूंगा। दिन भर काम करते, दिन भर काम करने के बाद रात को जब दुकान बंद करना होता वो रियालों को गिनते थे, जितने 10 रियाल होते थे उसमें में से 1 रियाल वो निकालते जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, यकायक उनका इंतकाल हो गया, बड़ी बड़ी चीजें चलने लगी थी, बड़े बड़े यतीम खाने चल रहे थे, बड़े बड़े मदरसे चलने लगे थे, उनके अल्लाह ने इतनी बरकत दी थी। उसके बाद उनके इंतकाल पर वो तमाम लोग जमा हो गए। उनके बच्चों ने कहा क्या मामला हुआ, उनके बच्चों को बताया गया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, हम लोगों को बड़े फिक्र हो गया, हमारा ये काम कैसे होगा। बच्चों ने कहा कि ऐसा क्या मेरे अब्बा करते थे कि जो आप लोगों को इतना फिक्र हो गया कि उनकी परवरिश कैसी होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके अब्बा करते ये थे, हर 10 रियाल पर 1 रियाल वो सदका किया करते थे। उन बच्चों ने सुना कि मेरे पूरे जिंदगी अब्बा ने ऐसा किया, हमें भनक तक नहीं लगी, इतने बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, इतनी यतीमों को पाल रहे, अल्लाह पाल रहे थे मेरे बाप। उन्होंने नियत किया कि अब हर 10 रियाल पर 1 रियाल नहीं बल्कि 2 रियाल हम सदका करेंगे। अल्लाह ने उनके कारोबार को इतना बढ़ा दिया है, पूरी दुनिया के अंदर उनके ब्रांचेस हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा आज साड़ी का मामला बड़ा ही खराब हो चुका है, हमारा आप रोना रो रहे हैं। हर साड़ी पर 1 रुपए के आप सदके की नियत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कारोबार में बरकत जरूर अता फरमाएगा। वक्त भी हो चुका है, इशा का वक्त। मैं एक चीज और बयान कर दूं, 1-2 चीज और बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुख्तसर तौर पर तौबा करने वालों की हरकत को भी देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। अगर आदमी तौबा करे, कोई गुनाह हो गया है, गुनाह होने के बाद उस पर नादिम और शर्मिंदा हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी खुशू होती है। बुखारी के एक हदीस है 2747 नंबर की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह की तरफ तौबा की नीयत से आता है, तौबा करता है, गिरिया वजारी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे खुश होता है जैसे एक आदमी बेआबो गया वादी में चला गया, एक जंगल में चला गया हो और ऊंट उसके साथ है, उस पर तमाम सामान लदे हुए हैं, फिर क्या है वो उस ऊंट को
मानता ही ऐसे ही छोड़ देता है और खुद सो जाता है। उठता है, जब आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट उसके पास नहीं है। वो इधर उधर जाकर तलाश करता है, वो ऊंट मिला नहीं। अब सोचा कि तमाम चीजें तो उस पर थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत हो जाए। अब वो फिर वहीं आकर सो जाता है। फिर दोबारा जब आंख खुलती है तो फिर उसके बाद क्या मामला होता है, देखता है कि वो ऊंट सामने है। वो मारे खुशी में कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। उसे कहना ये चाहिए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। लेकिन उसने कहा अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। उसको इतनी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इससे ज्यादा खुशी होती है, अल्लाह इससे ज्यादा मुस्कुराता है, इससे ज्यादा हंसता है जब बंदा तौबा के लिए अल्लाह के दरबार में आता है। एक आखिरी अमल वो है कि एक आखिरी आदमी वो है जो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी हरकत को देखकर मुस्कुराएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान है वो, उसको जहन्नम से निकलवाएगा, उसके ऊपर आबे कौसर डाला जाएगा। वो आदमी ऐसे खिल उठेगा जैसे कूड़े करकट में बीज से नए पौधे निकलने लगते हैं। वो आदमी एक पेड़ के नीचे आएगा, देखेगा एक दूर बहुत बेहतरीन पेड़ दिखाई दे रहा है, उसका साया इससे ज्यादा अच्छा है। अल्लाह से शिकवा, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह से गुजारिश करेगा अल्लाह मुझे उस पेड़ के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा कि अब इसके बाद कुछ मांगोगे तो नहीं, मैं तुम्हें उस पेड़ के पास पहुंचा दूं, वहां के साया तुम पा जाओ। वो कहेगा अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगूंगा। एक पेड़ के पास जाएगा, फिर दूसरा पेड़ दिखाई दिया, फिर वही सारी बातें होगी। अल्लाह दूसरे पेड़ के पास पहुंचा देगा, फिर तीसरे पेड़ का दिखाई दे देगा, फिर उस पेड़ के पास जाएगा। अल्लाह कहेगा अब कुछ मत मांगना। लेकिन अब जन्नत के करीब पहुंच गया, जन्नत का दरवाजा दिखाई दे रहा है, जन्नत से शोर शराबे सुनाई दे रहे हैं। वो कहेगा अल्लाह इस दरवाजे के अंदर मैं झांकना चाहता हूँ। अल्लाह कहेगा कि मैंने कहा था इसके बाद कुछ मत मांगना, लेकिन तुम बड़े लालची हो, अल्लाह बस एक बार दिखा दे, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, जाओ मैं तुमको दाखिल कर देता हूँ। जैसे ही जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो देखेगा कि इसके अंदर तब जगह ही नहीं है, यानी अब कोई जगह ही खाली नहीं है। वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेगा अल्लाह इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। अल्लाह कहेगा कि तुमने इसमें सिर्फ झांकने के लिए कहा था, जगह नहीं मांगी थी। अल्लाह मुस्कुराएगा, कहेगा कि तुम बड़े बेहिस हो, बड़े लालची हो, और तुम्हारे अंदर आज भी वो चीजें हैं कि तुम थोड़ी सी चीज पर मुतमईन नहीं होते हो। अल्लाह कहेगा कि मैं दुनिया से दुगुना तुम्हें जगह अगर दे दूं तो तुम खुश हो जाओगे। वह बंदा कहेगा कि अल्लाह क्या मजाक कर रहे हैं, दुनिया के अंदर, दुनिया से भी बड़ी जन्नत के अंदर मुझे जगह देंगे, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसे एक महल अता करेगा, और वो महल उसके लिए इतना बड़ा होगा, वो देखकर सोचेगा कि इससे बड़ा किसी के पास नहीं है। अल्लाह उसकी इस अदा को देखकर मुस्कुराएगा। मेरे भाइयों, ये चंद अमाल थे जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराता है। तो हमें भी चाहिए कि इन अमाल को करे, और करने के बाद हमें ये खुशनसीबी हासिल हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हरकत को देखकर मुस्कुराए। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमने जितनी बातें सुनी हैं उस पर पहले मुझे और बकिया तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।